Hello students, today in this lecture we will continue with the basic accounting terms. In my first lecture I had explained you four terms. First was capital. Capital is amount invested by the owner to start his business or to run his business, and it is also known as net worth or owner's equity. If I have to start any business, I'll have to make some investment. That investment done by the owner in his business is known as capital. Second term which I had explained you was assets. Assets means property of business. Whatever is the property of business is known as assets. We have classified assets in two parts. One was current assets and other one was non-current assets. Current assets, those assets which can be converted into cash within a period of 1 year is known as current assets, and non-current assets means those assets which are held for continuous use in the business and are not meant for resale. They were non-current assets. Examples of current assets: cash balance, bank balance, stock account. Okay. And examples of non-current assets: land and building, plant and machine, furniture, vehicles, etc. Third term that we have discussed was liabilities. Liabilities means amount which the firm owes to outsiders. हमें जो भी फिर से repay करना है future में, that is a liability. Then we have classified liability as current liability and non-current liability. Current liability, those liabilities which are to be repaid within a period of 1 year are known as current liabilities. और जिन भी liabilities का payment after a period of 1 year करना है, they are non-current liabilities. 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है करंट लाइबिलिटी, 1 ईयर के बाद में पे करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज. ओके. फोर्थ टर्म वॉज ड्रॉइंग्स. Drawings means amount or goods withdrawn by the owner for his personal use. ओनर ने बिजनेस में से कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, देन दैट टर्म इज नोन एज ड्रॉइंग्स. मीन्स दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज ड्रॉइंग्स. ओके. नाउ फिफ्थ टर्म. All these four terms we have already discussed in the previous lecture. Now continuing with the topic, fifth term, that is debtors. Debtors means person to whom goods have been sold. Person to whom goods have been sold on credit. Debtors are those person to whom goods have been sold on credit. In business we are having two types of sales. One is कैश सेल्स एंड अनदर वन इज क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स मीन्स मैंने तुम्हें आज गुड सेल करे और तुम इमिडिएटली मुझे मनी पे करके जा रहे हो, देन दैट इज कैश सेल्स. क्रेडिट सेल्स, आई हैव सोल्ड गुड्स टू यू, आई हैव गिवन गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज़ टू यू, बट तुमने क्या बोला, तुम आज पे नहीं कर रहे हो, पेमेंट कब करोगे, आफ्टर 3 months. देन दैट सेल्स इज नोन एज क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स, गुड सेल करा, इमिडिएटली कैश आ गया, तो वो तो कौन सी सेल्स हो गई, कैश सेल्स. क्रेडिट सेल्स, गुड सेल करा बट पार्टी अभी पे नहीं कर रही है, फ्यूचर में पे करेगी, देन दैट सेल्स इज नोन एज क्रेडिट सेल्स. ठीक है. तो हमारे बिजनेस में देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज कैश सेल्स एंड अनदर वन इज क्रेडिट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सोल्ड गुड्स amounting to 80,000 rupees to a person named as Ram. Okay, I had sold goods amounting to 80,000 rupees to Ram. Ram said to me that he is not paying the amount right now, but he will pay this amount after 5 months. अभी पे नहीं कर रहा, क्या बोला है, कब पे करेगा, आफ्टर 5 months वो मुझे पे करेगा. ओके. तो दैट पर्टिकुलर सेल्स इज क्रेडिट सेल्स, बिकॉज मुझे इमिडिएटली कैश रिसीव नहीं हो रहा, मुझे पैसा कब मिलेगा, आफ्टर 5 months. तो दैट इज क्रेडिट सेल्स. ओके. देन दैट पर्टिकुलर पर्सन राम विल बी रिकॉर्डेड एज डेटर्स इन माई बुक. मैं अपनी बुक्स में राम को किस नेम से शो कर दूंगी, डेटर, बिकॉज आई हैव टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम हिम इन फ्यूचर. मैंने उसको कौन सी सेल्स करी है, क्रेडिट सेल्स करी है, उसने मुझे अभी पेमेंट नहीं किया, ही विल मेक द पेमेंट आफ्टर 5 months. फॉर द पीरियड ऑफ 5 months I'll record his account in the name of daters. मैं उसका अकाउंट किस नेम से रिकॉर्ड करूँगी अपनी बुक्स में, डेटर्स के नेम से रिकॉर्ड करूँगी. क्लियर.
डेटर्स मीन्स पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिस भी पर्सन से हमें फ्यूचर में मनी रिसीव करना है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी नोन एज डेटर्स। क्लियर? मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? आई हैव सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 80,000 रुपीज टू राम। राम सेड दैट ही विल मेक मी द पेमेंट आफ्टर 5 months। फॉर द पीरियड ऑफ 5 months मैं अपनी बुक्स में राम को किस नेम से रिकॉर्ड कर लूँगी? डेटर्स के नेम से। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेटर्स क्या है हमारे? करंट एसेट्स। मैंने करंट एसेट्स के एग्जाम्पल में डेटर्स लिखा था। करंट एसेट्स क्यों? एसेट्स क्यों? बिकॉज वी हैव टू रिसीव अमाउंट। इनसे फ्यूचर में हमें क्या होगा? कैश मिलेगा ना। राम ने क्या बोला? 5 months बाद में पे करेगा, तो आफ्टर 5 months मुझे कितना कैश मिल जाएगा? 80,000 रुपीज़। तो डेटर इज कन्वर्टेड इनटू कैश, फ्यूचर में कैश रिसीव होगा, इसलिए वो हमारे लिए कौन सा एसेट हो गया? करंट एसेट्स हो गया। और मैंने पीरियड कितना लिखा? 5 months, मीन्स 1 year के अंदर कैश में कन्वर्ट हो गया। 1 year के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट्स। नॉर्मली बिजनेस कितना क्रेडिट पीरियड? 3, 4, 5, 6 months का क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे, इसलिए हम डेटर्स को कौन सा एसेट्स में क्लासीफाई करते हैं? करंट एसेट्स में क्लासीफाई करते हैं। क्लियर? डेटर्स मीन्स द पर्सन टू whom goods have been sold on credit, we will receive some amount in the future from these person। जब तक वो पैसा नहीं मिल जाता, that particular person is known as daters, or it will be recorded as daters in our books। Okay, next term, creditors, just opposite। creditors are person from whom goods have been purchased, person from whom goods have been purchased on credit। डेटर्स तो कौन थे? जिनको हमने क्रेडिट सेल्स करी है। इन द सेम वे हम अपने बिजनेस के गुड्स क्रेडिट पे भी तो परचेज कर सकते हैं। मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन से गुड्स परचेज करे और मैंने उसको बोला आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 4 months। तो जब तक मैं उसको अमाउंट पे नहीं कर देती, मेरी बुक्स में मैं उसको किस नेम से रिकॉर्ड करूँगी? क्रेडिटर्स के नेम से। तो क्रेडिटर्स आर पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स तो हमारे एसेट्स थे, बिकॉज वी हैव टू रिसीव अमाउंट इन फ्यूचर। डेटर्स से तो हमें फ्यूचर में पैसा मिलना था। क्रेडिटर्स आर अ करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्यों? बिकॉज वी हैव टू पे द अमाउंट टू देम इन फ्यूचर। डेटर्स से तो पैसा रिसीव होगा और क्रेडिटर्स को क्या करना है? हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो डेटर्स तो एसेट्स हो गए, क्रेडिटर्स कौन हो गए? हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो what we should keep in mind, when there is credit sales, debtors account will be open. When there are credit purchases, creditors account will be open. Then debtors are regarded as current assets and creditors are recorded as current liabilities। ठीक है, next term, seventh term, purchase, purchase account। Normally we know the meaning of purchase, what is purchases, right? But in accountancy, purchase is related to, purchase means purchase of goods। परचेज अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? ओनली परचेज ऑफ गुड्स इन विच आर बिजनेस डील्स। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उसको अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वी विल यूज़ परचेज अकाउंट, अदरवाइज परचेज अकाउंट विल नॉट बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस किसका है? गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, हमारा बिजनेस किसका? जस्ट मिनट, हमारा बिजनेस किसका है? गारमेंट्स का बिजनेस है। ओके, तो अगर मैंने अपने बिजनेस में गारमेंट्स परचेज करे हैं, मैं बाहर से स्टॉक परचेज करके लाऊंगी ना रीसेल करने के लिए, तो मैंने गारमेंट्स परचेज किया, अपना स्टॉक परचेज किया, तो मैं कौन सा अकाउंट ओपन कर लूँगी अपनी बुक्स में? परचेज अकाउंट। ठीक है, सेम बिजनेस में मैंने क्या किया? अपनी शॉप में फर्नीचर लगवाया, फर्नीचर परचेज किया, एक टेबल परचेज कर ली, कुछ चेयर्स परचेज करी है, देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज परचेज अकाउंट। उसको हम परचेज अकाउंट से रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
परचेज अकाउंट किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर दी परचेज ऑफ गुड्स इन विच आर बिजनेस डील्स। जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर हम उसकी परचेज कर रहे हैं तभी हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज परचेज अकाउंट यूज नहीं होगा। फर्नीचर परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा बुक्स में? फर्नीचर अकाउंट ओपन हो जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल ले लो, फुटवेयर की शॉप है, हमने बाहर से फुटवेयर परचेज किया, स्टॉक परचेज करेंगे सेल करने के लिए, फुटवेयर परचेज किया तो मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूँगी? परचेज अकाउंट ओपन करूँगी। उसी शॉप के लिए मैंने फिर से फर्नीचर परचेज किया, मुझे अपना काउंटर टेबल बनाना है, अपने कस्टमर्स के लिए सिटिंग टेबल्स बनानी है, ठीक है, तो उस केस में मैंने फर्नीचर परचेज किया, बट उसके लिए मैं परचेज अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। क्यों नहीं यूज़ कर सकती? बिकॉज माई बिजनेस इज रिलेटेड टू फुटवेयर। अगर मैं फुटवेयर परचेज कर रही हूँ तो मैं परचेज अकाउंट यूज़ करूँगी। फुटवेयर को छोड़ के अगर और कोई एसेट्स परचेज हो रहे हैं तो वो एसेट्स अकाउंट ओपन होगा। ओके, तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट कब ओपन होगा बुक्स में? ओनली फॉर दी परचेजेस ऑफ गुड्स इन विच आर बिजनेस डील्स। जिस चीज का हमारा बिजनेस है अगर हम वो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, अदरवाइज परचेज अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। इन द सेम वे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट मीन्स सेल्स रिलेटेड टू गुड्स ओनली। किससे रिलेटेड होना चाहिए? गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए तो सेल्स अकाउंट, अदरवाइज सेल्स अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म इज depreciation. Depreciation means reduction in value of fixed assets. Depreciation is reduction in the value of fixed assets due to their continuous use or passage of time. Depreciation is reduction in the value of fixed assets. Fixed assets and non-current assets are same. Land and building, plant and machinery, furniture, vehicles, they all are non-current assets और fixed assets भी वही होते हैं. Okay, then what is depreciation? We are using our fixed assets continuously. तो fixed assets की value क्या होती जाएगी? Reduce होती जाएगी. There will be reduction in the value of assets, right? For example, आज मैंने एक vehicle purchase की है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, आफ्टर 1 ईयर अगर मैं उसको सेल करना चाहूँ तो मैं सेम अमाउंट पे सेल कर सकती हूँ क्या? We can't sell the particular vehicle for the same amount. There will be some reduction in the value. Why there is reduction? Because we have used that asset, है ना? तो assets की value क्या हो गई? reduce हो गई. That reduction is known as depreciation. इन द सेम वे हमारे बिजनेस में प्लांट एंड मशीन लगाया हुआ है हमने, है ना, अपना प्रोडक्शन पर्पस कर रहे हैं उसके लिए मशीन लगाई हुई है, मशीन को हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर 1 ईयर मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. दैट रिडक्शन इज नोन एज डिप्रिसिएशन. ओके, तो डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, करंट एसेट्स पे कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बिकॉज करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. करंट एसेट्स तो 1 ईयर में किस में कन्वर्ट हो गए? कैश में. और कैश की वैल्यू कभी कम होती है क्या? नहीं होती ना. तो कंडीशन क्या, what we have to keep in mind is depreciation is charged on all fixed assets. depreciation कभी भी current assets पे charge नहीं होता है. okay, then exception, मैंने लिखा कि depreciation is charged on all fixed assets except land. लैंड इज आर फिक्स्ड एसेट्स ना, लैंड नॉन करंट एसेट्स है, बट लैंड पे कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. नॉर्मली लैंड की मार्केट वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज ही होगी ना. रेयर कंडीशंस, एक्सेप्शनल सिचुएशंस छोड़ दो कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अदरवाइज तो क्या होगा? लैंड की मार्केट वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी. लैंड की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होती है. ओके, तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड. लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. लैंड की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है. ओके, देन नेक्स्ट टर्म बैड डेट्स. बैड डेट्स मीन्स अमाउंट irrecoverable
due to insolvency of any person. What is bad debts? Bad debts is amount irrecoverable due to any person. ठीक है, हमने पीछे डेटर्स डिस्कस किया था. डेटर्स क्या, पर्सन को क्रेडिट सेल किया, he told me that he will pay me the amount after a period of suppose 5 months. बट आफ्टर 5 मंथ्स क्या हुआ, उस पर्सन के पास पैसा नहीं है एंड ही इज़ डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. हु इज़ इंसॉल्वेंट? जो पर्सन अपने अमाउंट पे नहीं कर पाता है ना, दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट. ओके, कंडीशन क्या, मैंने किसी पर्सन को गुड्स सेल करे थे, 5 मंथ्स बाद उसको पैसा देना था, बट आफ्टर 5 मंथ्स दैट पर्सन वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. अब वो अमाउंट क्या होगा, मुझे रिकवर नहीं होगा, मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. तो दैट अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स इन माई बुक्स. सपोज मैंने इस पर्सन को 80,000 रुपीज़ के गुड्स सेल करे थे, 5 मंथ्स का पीरियड था, ठीक है. आफ्टर 5 मंथ्स दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. तो ये जो 80,000 रुपीज़ थे, पहले तो मेरी बुक्स में किस अकाउंट के नेम से थे, डेटर्स. हमने पर्सन को क्रेडिट सेल्स करी थी, तो जब तक उससे अमाउंट नहीं आ जाता, वो अमाउंट हम किस नेम से शो करते हैं, डेटर्स के नेम से. बट आफ्टर 5 मंथ्स पता चला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला है. तो ये जो 80,000 रुपीज़ हमारे डेटर्स अकाउंट में थे, अब वो किस अकाउंट के नेम से शो हो जाएंगे, बैड डेट्स. इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस. लॉस हो गया ना बिजनेस में कि 80,000 रुपीज़ अमाउंट अब रिकवर नहीं होगा. दैट 80,000 विल बी रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स इन द बुक्स. ओके, क्लियर. बैड डेट्स इज अमाउंट इरिकवरेबल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पर्सन. कोई पर्सन मार्केट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, देन दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स. ओके, इससे पहले हमने डिप्रिसिएशन किया. डिप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स आर सेम. Depreciation is reduction in the value of fixed assets due to their continuous use. Depreciation is charged on all fixed assets except land. हम asset use कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस. दैट रिडक्शन इज नोन एज डिप्रिसिएशन. Then we have discussed purchase and sales. Purchase and sales means purchase and sales related to goods. Purchase account, sales account books में कब open होगा, only in the case of goods. When we have purchased goods, we will use purchase account. When we have sold the goods, we will use sales account. Okay. Then we have discussed debtor and creditor. Debtors means the person to whom goods have been sold on credit. क्रेडिट सेल्स करिए, पर्सन विल पे द अमाउंट इन फ्यूचर. तो जब तक वो अमाउंट पे नहीं कर देता, ही विल बी रिकॉर्डेड एज डेटर्स. क्रेडिटर्स जस्ट अपोजिट. क्रेडिटर्स मीन्स पर्सन फ्रॉम whom goods have been purchased on credit. We have purchased goods on credit and we will repay the amount in future. तो जब तक रीपे नहीं कर देते, तब तक दैट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिटर्स. ओके, डेटर्स आर आवर करंट एसेट्स and creditors are our current liability. What we have to keep in mind is when there is credit sales, which account will be opened, debtors account. And when there is credit purchased, which account will be opened, creditors account. Okay.